Hello everyone. Today we are going to discuss about the important diseases, chromosomal disorder, Mendelian disorder, and how to solve pedigree questions. First of all, we are going to discuss about the Mendelian disorder. They are categorized on the basis of sex-linked chromosome recessive disorder, autosomal recessive disorder, and autosomal dominant disorder. Okay, sex linked recessive disorder, in which we have two example. One is color blindness. Color blindness is majorly absorbed in the males compared to females. It is absorbed more in the males, about 8%. Okay. And hemophilia is a blood related disorder in which clotting factor proteins they lack or they are deficient, due to which hemophilia disease occur in the organism humans. And this disease also observed in the family tree of Queen Victoria. So this disease is very important, hemophilia. This disease is caused due to defect in the proteins of blood clotting factor, and they are it is this disease is observed in the Queen Victoria family tree. Okay, now we come to autosomal recessive disease. Autosomal recessive disease, the disease that are found in the autosome, right? We have 24 23 chromosome, on which 23rd is a sex based chromosome. Okay, so 22 remaining chromosome are affected by this type of disease. Sickle cell anemia is basically a disease in which RBC shape get changed into elongated sickle shape. How? Because because as we know, hemoglobin is made up of alpha globin and beta globin. So there is a defect in the beta globin chain at the sixth position, where glutamic acid, which is amino acid, it gets substituted by valine. And due to one mutation, this disease is called as point mutation, because there is a change in the codon GAG to GUG. We can observe there is a one base pair defect, adenine to uracil, right? So that's why this disease is also called as point mutation. When this mutated cell is under the low oxygen condition, then the shape of RBC get converted into change into transformed into elongated sickle shape. So this disease is also very important. Okay. And in which allele this disease is a trait is appeared in the phenotype form. In the heterozygous, in the HPA HBC, in the hetero form, this disease is normal, because our disease is recessive and A become dominant and S is recessive, so dominant is present. That's why the person even carrying the allele of their disease, it is recessive in nature. That's why no person will be normal. Okay. However, when they are in the HBS SS allele form, in the both recessive form, then homozygous form, then this disease will appear and the phenotype will appear. Okay. Next disease is a phenylketonuria. This disease is in the metabolism defect, error of metabolism. This disease is due to the single gene mutation. And why this disease occur? Because there is an enzyme that is very important to transformation of phenylalanine amino acid convert into tyrosine alanine. Okay. But this enzyme
phenylalanine hydroxylase is limited, defective, due to which phenylalanine cannot be converted into tyrosine. So what happen is phenylalanine start accumulating because it is not converted into tyrosine. That's why it is started accumulated in the brain, or it can be released in the urine form, right? And kidney absorption also become poor, and due to accumulation of phenylalanine in brain, it causes mental retardation. So this is a disease of phenylketonuria. Okay, and this is an example of pleiotropy because there is a single gene effect, there is a single gene mutation, but however we can observe many defect, many type of defect, many type of phenotype: urine problem, kidney problem, brain accumulation, mental retardation. So there are single gene but many effects are many. So that's why it is an example of pleiotropy. Okay, next we come to thalassemia. Thalassemia is due to the defect in the synthesis of globin chains in the either alpha or beta or both. Okay, as we know, alpha beta globin chain form the hemoglobin, which hemoglobin is a basically a pigment that get attached to oxygen, helping the transfer of oxygen. However, due to the defect in the alpha or beta globin chain, the hemoglobin become abnormal, and it causes the anemia. Okay, disease caused by the thalassemia is also anemia. But there are two types of thalassemia: alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia because of defect in the alpha globin chain, and there are two genes due to which alpha thalassemia is occurred: HBA1, HBA2. So these two genes are they are defect due to which this disease is happening to the person, and this chromosome number 16 on which this defect is occurring. Okay, next our type is beta thalassemia. In this, beta globin chain become defect, and the gene defective is HBBV, and the chromosome on which this gene is defective is chromosome number 11, chromosome 11. And how this thalassemia is different from sickle cell anemia? Sickle cell anemia is a qualitative defect. In the 12th board previous year question paper, I have observed they have also asked the difference between the sickle cell anemia and thalassemia. So sickle cell anemia is a qualitative defect. What do you mean by qualitative? Functioning is abnormal or functioning is not good, functional defect है. क्वांटिटी तो सेम ही है बट फंक्शन ही नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल है. That is a qualitative defect. But however, thalassemia is a quantitative defect. It is a quantitative defect. Okay. Now, what do you mean by quantitative defect? Basically, alpha globin chain is not forming, right? Or beta chain is synthesis get reduced. Synthesis is decreasing. Form ही नहीं हो रहा. वहाँ फॉर्म तो हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया में फॉर्म तो हो रहा है, बट नॉन फंक्शनल बन रहा है. लेकिन इन द थैलामीशिया देयर इज अ डिफेक्ट इन द सिंथेसिस, प्रॉपर फॉर्म ही नहीं हो रहा. Okay, so that is the difference between the thalassemia and sickle cell anemia. Okay, now we come to chromosomal disorder. So chromosomal disorder is caused due to either addition of chromosome, abnormal arrangement of chromosome, addition, deletion, anything that causing the abnormal arrangement of chromosome. Okay, so in this there are two types: aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy is due to the failure of chromatid segregation during the cell division. As we know, during the anaphase, the chromatid gets separated and moved to separate poles, right? So when there is a default in the chromatid segregation, it results either in the gain or loss of extra chromosome. So that's why there are three examples of aneuploidy.
Down syndrome due to the extra chromosome 21, that's why trisomy 21, extra 21 क्रोमोसोम नंबर होगा इसमें, दैट्स वाई ट्राइजोमी 21 21 21, दो होनी चाहिए थी बट तीन हो गई इसलिए ट्राइजोमी 21। ओके, क्लीन एफ्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा मेल है उसके साथ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, और एक्स एक्स्ट्रा क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, एक्स एक्स क्या हो गया, फीमेल हो गया ना। सो दैट्स वाई दे आर स्ट्राइल क्रोमोसोम, बेसिकली उनमें क्या होगा, स्ट्राइल होगा 47, उनका क्रोमोसोम नंबर बन जाएगा टोटल, ठीक है। और जो उसकी उसमें क्या होगा, ओवरऑल तो मेल ही होगा लेकिन उनमें कुछ कुछ फीमेल करेक्टर पेयर होंगे, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम, उसमें क्या था, एक्स एड ऑन हो रहा था, इसमें क्या हुआ, इसमें एक लॉस ऑफ हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो गया, दैट्स वाई दे आर बिकमिंग, दे आर फीमेल बट दे स्ट्राइल, in this rudimentary ovaries are present, मतलब ovaries are not functional properly, abnormal ovaries are present, and sexual characters are also, secondary sexual characters are not well developed or lack. Now next we come to polyploidy. Polyploidy is due to the failure of cytokinesis. जब cytokinesis ही नहीं होगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, राइट, सो दैट्स वाई क्या होगा, टेलोफेज के बाद क्या होता है ना, सेल प्रॉपर डिवाइड होता है, वो उसमें साइटोकिनेसिस नहीं होगा तो जो उसका सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट्स वाई पोलीप्लाइडी इज इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इट इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट्स, मेजरली ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट्स। अब ये जो पेडिग्री मैंने बनाई है, जिसमें जिसमें इसके पेरेंट्स क्या हैं, इसमें ट्रेट पेयर नहीं हो रहा डिजीज़ का, ठीक है, फिनोटाइप इनका नॉर्मल है, कैरियर हो सकते हैं बट इनका फिनोटाइप नॉर्मल है, ठीक है, नॉन, लेकिन इनके जो चाइल्ड है जैसे ये, इनमें डिजीज़ अपीयर हो रहा है, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव का है। ओके, तो ये था इसकी थ्योरी, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, रुको, यस, ये पेडिग्री के कुछ वो मतलब भी क्या कहते हैं सिंबल्स हैं, जैसे ये किसका सिंबल है, पेडिग्री चार्ट में ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, दैट्स इज अ कॉन्जेनियस मीटिंग। तो ये एक बार इसके सभी देख लेना, इसके सभी ये सिंबल्स देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ हम ना पेडिग्री देखते हैं, जैसे इन्होंने ये हीमोफीलिया का दिया है, जैसे हमने पढ़ा ही था हीमोफीलिया क्या होता है, अगर कोई डिजीज़ मेंशन ही है तो आप एक बार याद ही कर लो भी कौन से ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन से ऑटोसोमल डोमिनेंट है, राइट। तो इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है, हीमोफीलिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन एक बार हम पेडिग्री देखते हैं कैसे है। अगर आपको हीमोफीलिया नहीं दिया सपोज यहाँ, हाँ, अगर आपको यहाँ हीमोफीलिया नहीं दिया, सिर्फ ये पेडिग्री दी है, तो हम कैसे देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले इनके पेरेंट क्या हैं, इनमें कोई डिजीज़ नहीं है तो डेफिनेटली कैरियर होंगे। अगर हमें ये पता करना है अभी सेक्स लिंक क्रोमोसोम इसका है कि नहीं, तो हम ये पहले देखते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ले रहे हैं फीमेल, इनकी क्रॉस कराएंगे हम मेल के साथ। अब हम मेल को तो कैरियर दिखा ही नहीं सकते, फीमेल ही कैरियर होती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, फिर क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा, यस, नाउ इट्स विजिबल, यस, जो फीमेल है ना, उस वो ही कैरियर होती है, ओके, मेल कैरियर नहीं होता। तो ये तो मैंने क्रॉस बनाया है, ठीक है, यस, तो ये एक्स वाई है, ये एक्स एक्स है, ये फीमेल होगी हमारी, ये मेल हो गया। अब इनका हम ना वो बनाएंगे,
ये देखो, अगर हम इसका इसका क्रॉस करते हैं तो ये तो एक्स एक्स हो गया, राइट। अगर हम इसका एक्स का वाई के साथ करते हैं तो ये बन गया। अगर हम एक्स सी एक्स करते हैं तो ये, अगर हम एक्स सी वाई, तो इसमें देखो, इसमें तो सब में एक्स डोमिनेंट है तीनों में, राइट। जब डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव तो अपना एक्सप्रेस नहीं करेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें जो फीमेल चाइल्ड है, डॉटर है, तो उसकी डिजीज हो ही नहीं सकती। ले हम्म हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो मेल है वो डिजीज पॉसिबल है। तो ये केस पॉसिबल है। तो देखो, अगर ये डिजीज डोमिनेंट होती तो उसकी पेरेंट डेफिनेटली डिजीज्ड होती। तो इससे पता लग गया जो डिजीज है वो रिसेसिव ही होगी। ओके, राइट। इसके पेरेंट यहाँ डिजीज नहीं है, तो इससे पता लगता है भी ये हमारे डिजीज रिसेसिव है। अगर यहाँ इस तरह शो किया होता तब हम इसको डोमिनेंट लेते, लेकिन यहाँ कोई डिजीज नहीं शो की गई तो ये हमारी रिसेसिव हो गई। ये हो गया। अब हमें ऑटोसोमल और सेक्स लिंक कैसे पता करना है, तो ऐसे हम देखेंगे। यहाँ केस पॉसिबल है क्योंकि फीमेल तो हमें कोई शो ही नहीं की गई, मेल किया गया है, और मेल हमारा डिजीज बन रहा है एक्स सी वाई, राइट। तो ये हमारा क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो ये आ जाएगा इसका। हीमोफीलिया वैसे भी सेक्स रिसेसिव डिजीज है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है, हीमोफीलिया मेंशन नहीं किया है, तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट ना, ये एक डिजीज मेंशन की गई है। कौन सी बॉडी के मतलब ऐसी कौन से डिजीज है जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में खुद की सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं। देखो, थैलेमिशिया तो ब्लड की डिजीज है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। थैलेमिशिया तो ब्लड की डिजीज है, तो पॉसिबल नहीं। फिनाइल की टोनोरिया फिनाइल की डिजीज है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। फ्लेयरसिस हमें पता ही है ना, ये होती नहीं है, ये अटैक सेल की डिजीज नहीं होती, राइट। इसमें तो इन्फ्लामेशन होती है ना, पार्ट्स की। तो ये रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसमें क्या है, जॉइंट्स में होती है ये, उसमें फ्लूइड फील्ड होता है, और ये सेल डिफेंस के अकॉर्डिंग फिर ये सेल्स को किल करती है, ठीक है। तो इसका आंसर है अर्थराइटिस। ओके, ये हो गया हमारा। अब ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। A pedigree chart is shown below for a disease that is autosomal dominant. ओके, तो हमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का ही दिया है, क्योंकि देखो ना, एक पेरेंट, अगर किसी में पेरेंट कोई डिजीज शो हो रहा है, जैसे यहाँ पेरेंट डिजीज शो हो रहा है, राइट, तो वो डोमिनेंट है। अब इन्होंने ऑटोसोमल मेंशन कर दिया, तो ये सेक्स लिंक तो नहीं है, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इज, तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, यही है फर्स्ट, राइट। फर्स्ट जनरेशन यही है हमारा। तो उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा। अब हमारी डिजीज डोमिनेंट है, तो जा तो इसका क्या पॉसिबल है, डोमिनेंट है, जा तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें इसका नहीं पता, राइट। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तो ये ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट डिजीज है तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो इसका जो सेकंड है वो ए ही होगा, तो इसका बी ऑप्शन आ गया। इजी क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल। तो ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये तो अच्छा था, नाइस। ओके, अब ये आ गई, ये पेडिग्री में हमें डिजीज देखनी है। क्या गिवन है हमको, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट इन विच नाइदर पेरेंट शो द ट्रेट ऑफ डिजीज।
बट हाउएवर ट्रेट इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। तो इसमें इससे पता लग गया अभी रिसेसिव है, क्योंकि अगर पेरेंट में डिजीज़ नहीं है ना तो इसका मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, आगे आगे हम ऑटोसोमल है क्या है वो हम देखते हैं। देखो इसमें हम क्या बनाएंगे वो बनाते हैं। पहले हम ऑटोसोम का देखते हैं। जैसे हमने मदर का ये ले लिया हमने, राइट, फिर फादर का ये हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या पॉसिबल है। ए ए रुको, ऐसे ही सीधा ही बनाते हैं। ये कैपिटल हुई हो गया। अब डिजीज तो हमारी है ना वो है रिसेसिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल ये तो हमारा डोमिनेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है हेट्रो में। तो ये हमारा एक पॉसिबल है, यस, तो ये इसमें तो पॉसिबल है। अब इसमें क्योंकि सेक्स लिंक डिजीज़ नहीं है, और सॉरी मतलब हम एक बार चांस दे रहे हैं ना भी ऑटोसोम का है, तो ऑटोसोम में सेक्स लिंक का कोई लेना देना ही नहीं। तो ये डिजीज़ दोनों पॉसिबल है, मेल और फीमेल चिल्ड्रन में बहुत में पॉसिबल है। ये हमारा हो गया। अब हम फीमेल का देखते हैं। जैसे हमारी फीमेल को डिजीज़ है, ठीक है, मेल हमारा कैरियर ही नहीं होता, कोई फीमेल होती है ना कैरियर, तो हमने ये कैरियर शो किया है, क्योंकि फिर ट्रेड तो शो ही नहीं हो रहा डिजीज़ का। तो XX वो डोमिनेंट हो गई, नॉट पॉसिबल। XC सॉरी, अब इसमें X एक डोमिनेंट हो गया तो डिजीज़ नहीं आएगा। हम चिल्ड्रन को देख रहे हैं डिजीज़ पॉसिबल है कि नहीं। XY तो इसमें भी कोई डिजीज़ नहीं है। XCY तो हाँ, इसमें हमारा एक सन को डिजीज़ हो सकती है, बट हमें तो बहुत चाहिए ना। फीमेल इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं हो रही। देखो इसके ऐसे हमारी बना के देखो चार्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारी फीमेल कोई भी डिजीज़ नहीं हो रही है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये हमारी तो है फीमेल डिजीज़ हो रही है। तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ओके, इसको अच्छे से देखना, जो मैंने समझाया एक बार नहीं आएगा, ठीक है, अगर आ गया तो वेरी गुड, लेकिन एक बार फिर से देखना। ओके ठीक है, तो उन्होंने आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। राइट अबाउट द ट्रेट, तो हमारा ट्रेट तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, एंड एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस सच ट्रेट इन द प्रोजेनी ऑन द बेसिस ऑफ पेडिग्री चार्ट। तो इसमें एक्सप्लेन कर देना भी कैसे ये हुआ, मतलब इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, और एग्जांपल कुछ भी ले लो, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलामीशिया, तो ये सब हमारी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है।